دوستوں میں ہوں قمر چیمہ اور دوستوں آ، ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ تقریباً 5 ایک سال کے بعد ایک فل یو ایس امبیسڈر پاکستان آ رہے ہیں، فل فلیج آپ کہہ لیں اس کو۔ پہلے جتنے بھی پچھلے 4 5 سال سے جو تھے وہ چارج ڈی افیئرس تھے زیادہ تر، اور ابھی کچھ 4 5 سال سے یہ چارج ڈی افیئر ہی جو ہے وہ گزارا کر رہے تھے۔ اور میں نے کسی دفعہ ایک دفعہ پوچھا کسی دوست سے اسی طرح کہ یہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ یو ایس ایمبیسڈرز دنیا میں جو ہے وہ چارج ڈی افیئر ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کیونکہ ہمارا جو کنفرمیشن کا پروسیس ہے وہ بڑا مشکل ہے، سینٹ فارن ریلیشنز کمیٹی سے اپروول چاہیے ہوتی ہے، پریزیڈنٹ کر بھی دے تو ظاہری بات ہے وہ ایک اتنا اس کی اہمیت تو ہے، لیکن جو وہاں پہ کیونکہ جسے آپ کہتے ہیں نا کہ ڈویژن آف پاور یا سیپریشن آف پاور ہے۔ اینی ہاؤ یہ جو نئے یو ایس ایمبیسڈر ہیں ڈونلڈ بلوم، ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ مڈل ایسٹ کے ایکسپرٹ رہے ہیں، اور جیسے ہی میرا خیال ہے یہ پاکستان آ رہے ہیں اسی وقت سردار مسعود خان جو پاکستان جو آزاد کشمیر کے صدر رہ چکے ہیں اور اس سے پہلے آئی تھنک یو این میں سرو کر چکے ہیں۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ سردار مسعود خان کے حوالے سے بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ انہوں نے پہلے ڈپلومیٹک سروس سے ریٹائر ہوئے، پھر یہ صدر بنے آزاد کشمیر کے، اور ابھی پھر امبیسڈر، یعنی کہ اونچی پوزیشن سے نیچی پوزیشن پہ کیوں آ رہے ہیں؟ اور اسی وقت دوستو جو لاس اینجلس کے میئر تھے ایرک گیرسٹ، وہ بھی ان کو بھی اپوائنٹ کیا گیا ہے ایز یونائٹڈ اسٹیٹس امبیسڈر ٹو انڈیا۔ اور اب آپ اس چیز سے امیجن کر لیں کہ اگر لاس اینجلس کا جو میئر ہے اس کو وہ لگا رہے ہیں امریکہ کا سفیر انڈیا میں، تو اٹ مینس دے آر گیونگ اے لاٹ آف امپورٹنس۔ میرا خیال ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے اگر آپ نے نوٹ کیا ہے دوستو، تو ہم نے یہ چیزیں سنی ہیں اور سمجھی ہیں کہ امریکہ کے اندر یہ جو اپروول ہے یہ ڈیموکریٹس اینڈ ریپبلکنز دونوں یہ اپروو کرتے ہیں، اور جسے کہتے ہیں نا کہ ایک اکراس دا بورڈ اپروول ہے انڈیا کے ساتھ تعلقات کو آگے کی طرف لے کے جانے کی۔ اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے اس پہ بڑا کام کیا، اس سے پہلے اوباما نے کیا، خیر بش نے اس کو پراپرلی سٹارٹ کرنا شروع کر دیا تھا جب میجر ایک اگر آپ کو یاد ہو تو ایک جو سول نیوکلیئر ڈیل انڈیا کو ملی تھی۔ لیکن اس دفعہ اور پھر اس کے بعد اوباما آئے انڈیا، پھر اس کے بعد ٹرمپ آئے، اور ابھی آئی تھنک بائیڈن بھی ظاہری بات آئیں گے، اور اس دوران کوئی بھی امریکی صدر پاکستان نہیں آیا سوائے پریزیڈنٹ بش کے۔ اچھا یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جو یو ایس امبیسڈر ہیں یہ ہیوی ایجنڈا لے کے آ رہے ہیں، اور ان ایجنڈاز میں سے یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ جی تمام دہشت گردوں کے خلاف پاکستان جو ہے وہ کام کرے، دہشت گردوں کو ایلیمینیٹ کرے irrespective آف their آئیڈینٹی۔ اب یہ جو ڈونلڈ بلوم صاحب ہیں، اور انہوں نے میرا خیال ہے اپنی سینٹ کی ہیئرنگ میں پش بھی کیا ہے، اور انہوں نے کنفرم کیا اور کہا ہے کہ وہ پاکستان کے ایڈمنسٹریشن سے یا پاکستان کی سرکار سے یہ باتیں کہیں گے کہ تمام دہشت گرد گروپوں کو ٹارگٹ کرے، پرٹیکولرلی ٹی ٹی پی اور کشمیری مجاہدین جو ہیں وہ اس حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اچھا ظاہری بات ہے اس میں جب بھی پاکستان ماضی میں بھی یہ باتیں ظاہری باتیں چلتی رہی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اس حوالے سے کہ یہ جو یو ایس امبیسڈر ہیں جو کہ مڈل ایسٹ ایکسپرٹ رہے ہیں، انہوں نے آئی تھنک عراق میں بھی سرو کیا ہے، افغانستان میں بھی سرو کیا ہے، لیبیا میں بھی سرو کیا ہوا ہے، کویت میں بھی سرو کیا ہوا ہے، اسرائیل کے حوالے سے بھی یہ انوالو رہے ہیں، ادھر بھی سرو کیا آئی تھنک انہوں نے۔ اور ایک بڑی ایک ڈپلومیٹک جسے آپ کہہ لیں کہ ایکسرسائز کے بعد یہ پاکستان آ رہے ہیں، اور obviously ان کو اس وقت جب یو ایس ٹروپس وڈرا کر چکے ہیں، امریکہ پاکستان کے ساتھ ری انگیج کر رہا ہے۔ اگر آپ 15 اگست پہ چلے جائیں تو امریکہ اور پاکستان کا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا وہ بہت زیادہ تھا، لیکن ابھی کچھ عرصے سے امریکہ اور پاکستان کا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بڑا کم ہوا ہے، خاص طور پہ جو ریسنٹلی جو کچھ ڈیلیگیشنز آئے ہیں امریکہ سے، ان کی وجہ سے اگر آپ نے او آئی سی کا جب پاکستان نے کانفرنس بلائی تو امریکنز وہاں پہ آئے تھے، اس سے پہلے آئی تھنک اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ پاکستان آئیں، اور پھر اس کے بعد کانگریس کے لوگ بھی آئے، سینٹ کے لوگ بھی آئے، اور بھی ڈیلیگیشن جو ریسنٹلی آئے تھے، ابھی میرے خیال ہے پچھلے مہینے آئے تھے ڈیلیگیشن۔ سو میرا خیال ہے مزید بھی شاید ظاہری بات ہے پاکستان اور یو ایس اس وقت پاکستان کو سمجھنے کی دوبارہ کوشش کر رہا ہے کہ پوسٹ یو ایس ودرال فرام افغانستان پاکستان اور امریکہ کا تعلق کس طرح کا ہو سکتا ہے۔ لیکن دوستو ایک چیز بڑی انفارچونیٹ ہے اور جس کو میں پچھلے بہت سالوں سے یہ بات کر رہا ہوں،
اور ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुक है उसमें डाइवर्सिफ़िकेशन होनी चाहिए। उसमें ये जो चीज़ है ना सिर्फ़ और सिर्फ़ सिक्योरिटी रिलेटेड कोऑपरेशन इससे आगे की तरफ जाना चाहिए। गो के पाकिस्तान अमेरिका की बड़ी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है और अमेरिका पाकिस्तान में काफ़ी इन्वेस्टमेंट करता है इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग, इन टर्म्स ऑफ हमारे स्टूडेंट्स को जो है वो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे लेके जाना, एक्सचेंज प्रोग्राम, वो बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। लेकिन असल कोऑपरेशन जो है, अगर आपको याद हो, अमेरिका के साबिक सफ़ीर कैमरॉन मंटर जो यहाँ पे रह के गए थे, उस वक़्त आई थिंक सुनने में आया था उन्होंने अपना ओहदा छोड़ दिया था इस्लामाबाद में, क्योंकि जब अमेरिका बहुत ज़्यादा ड्रोन स्ट्राइक कर रहा था अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर, तो उन्होंने कहा कि जी मुझे तो बताया ही नहीं जाता कि ड्रोन स्ट्राइक हो रही है। तो इस तरह की चीज़ें भी आई थिंक समवन टोल्ड मी दिस। अम, ने ये बात की है, किसी ने हमारे से ये बात की थी। एनी हाउ अब ये जो चीज़ के अमरीकी जो सफ़ीर हैं, वो ये कहते हैं, इन्होंने जो मैं कैमरन मेंटर साहब की बात कर रहा था, उन्होंने रिसेंटली आई थिंक इस्लामाबाद डायलॉग में या मार्गला डायलॉग में यहाँ पे बात की कि अगर पाकिस्तान वाक़ई चाहता है कि अमेरिका एक लॉन्ग टर्म ताल्लुक डेवलप करे, अमेरिका पाकिस्तान के साथ एक अच्छा कोऑपरेशन करे और पर्टिकुलरली ये जो पोस्ट यूएस विथड्रॉल है, पोस्ट यूएस विथड्रॉल जो है उसके हवाले से, ठीक है जी, फ्रॉम अफ़गानिस्तान, तो फिर उसके लिए पाकिस्तान की को इकोनॉमी जो है उसको हाई-टेक इकोनॉमी होनी चाहिए जिससे आपकी इकोनॉमी अमेरिका लिंक हो सके और आप वो ज़रूरियात पूरी कर सकें। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इनकी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं तो व्हाई नॉट। और दूसरा ये है कि अगर ये कहते हैं कि बिल्कुल जी आप तमाम दहशतगर्द ग्रुपों को के बारे में के खिलाफ एक्शन लें। पाकिस्तान ने इस हवाले से कहा है जी कि हम तो वी कैन नॉट डू मोर, हमने बहुत कर लिया। अब ये जो आप कह लें कि मसले हैं और दूसरी बात ये है कि यूएस एम्बेसडर जो हैं वो नॉर्मली वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से भी मिलते हैं या फॉरेन ऑफिस में भी जाते हैं और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी बड़ा रेगुलरली मिलते हैं। और क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान के ताल्लुकात में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मिलिट्री, पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो बहुत सारे जो क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ देखती है, पर्टिकुलरली अफ़गानिस्तान के मामलात देखती है, जिसमें शायद फॉरेन ऑफिस का इतना रोल नहीं होता, जिसकी वजह से अमेरिकन्स जो हैं वो मिलिट्री के साथ बड़ा रेगुलरली एंगेज करते हैं। और उन मिलिट्री के साथ एक अच्छा लायज़न है जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तान में स्टेबिलिटी के लिए बड़ा ज़रूरी है। लेकिन अगर नए एम्बेसडर जो हैं जिनको बाइडेन साहब ने नॉमिनेट किया 5 साल के बाद, क्योंकि मैं तकरीबन तमाम यूएस एम्बेसडर से ऑलमोस्ट रिसेंटली मिल चुका हूँ। ये जो अभी चार्ज डी अफेयर है इनसे भी मिला हूँ, ये भी बड़ा प्रोग्रेसिव और जिसे आप कह लें कि एंगेजिंग है एंड शी हैड अ लॉट ऑफ थॉट्स फॉर पाकिस्तान। आई थिंक ऑब्वियसली शी इज़ गोइंग लिविंग। इससे पहले जो चार्ज डी अफेयर से उनसे भी मिला था, उससे पहले यूएस एम्बेसडर हैं उनसे भी मिला था मैं। रूटीन में माज़ी में जो कुछ एम्बेसडर से मेरी मुलाकातें हैं, अक्सर कभी अगर किसी जगह पे इन्विटेशन पे मैं जाऊँ वहाँ पे। तो एक चीज़ जो बार-बार हमें यूएस से मिलती है कि यूएस पाकिस्तान के साथ बड़ा पॉज़िटिवली एंगेज करना चाह रहा है। अब पाकिस्तान जो है ऑब्वियसली पाकिस्तान भी यूएस को इग्नोर नहीं करना चाहता और एट द सेम टाइम पाकिस्तान डज़न्ट वांट टू गिव एन इंप्रेशन टू द अमेरिकन्स कि हम किसी ब्लॉक में हैं। गो के पाकिस्तान ने ये शो करवाने की कोशिश की है कि हम चाइना के साथ बड़ा करीबी हैं और ख़ास करके इमरान खान साहब ने। और और आपको मज़े की बात बताऊँ कि जब ये न्यू यूएस एम्बेसडर जो थे वो सेनेट में कर रहे थे, इनकी कन्फर्मेशन हो रही थी, तो वहाँ पे आई थिंक एक जो सेनेटर थे उन्होंने सवाल किया कि अगर आप जाएँगे तो क्या आप प्रेसिडेंट जो बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कॉल करवाएँगे? तो अब आप इमेजिन करें हमारे यहाँ पे ऑपोज़िशन लीडर हैं पाकिस्तान में, बिलावल भुट्टो साहब, उन्होंने असेंबली में शोर डाला कि हमारा फॉरेन मिनिस्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर की कॉल भी अरेंज नहीं करवा सका। जिसकी वजह से ये हुआ कि वो सारे लोग कॉल, कॉल, कॉल की बातें होगी, बाइडेन ने अभी तक कॉल नहीं की, बाइडेन ने अभी तक कॉल नहीं की। तो इमरान खान साहब के लिए बड़ा एक वो एम्बैरेसिंग मोमेंट डेवलप हो गया क्योंकि सारे मीडिया हाउसेस आ रहे हैं और इमरान खान साहब के पास कोई जवाब नहीं है, बार-बार ये कह रहे हैं वो मसरूफ होंगे, वो ये होंगे, वो होंगे, क्लैरिफिकेशंस वो दे क्या नया
एम्बेसडर जो है वो कॉल करवाएँगे कि नहीं बाइडेन की कि नहीं करवाएँगे। और ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब वहाँ पे जो सरदार मसूद साहब जा रहे हैं पाकिस्तान के ये जो एम्बेसडर यूएस में जा रहे हैं, मैं तो उनके जाने के खिलाफ था। उसकी रीज़न बिहाइंड ये है कि हमें यंग, एनर्जेटिक, एंगेजिंग और उन लोगों को इस तरह की पोज़ीशन में भेजना चाहिए जिनके अंदर जान हो काम करने की। जिन लोगों ने इतनी पंजाबी च कहंदे इन्ना कोई हंडा लिया है। अ डिप्लोमैटिक सर्विस भी कर ली, 5 साल के लिए सदर भी रह गए, अब उनकी क्या एपेटाइट होगी काम करने की? ये बहुत हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर बड़ा गंदा रवाज है कि जैसे लोग रिटायर होते हैं, हम रिटायर होने के बाद भी उनको जो पोज़ीशंस दे के रखते हैं। हम अपने यूथ पे, अपने लोगों पे ट्रस्ट ही नहीं करते, हम अपने लोगों को वो वैल्यू ही नहीं देते कि ये लोग भी काम कर सकते हैं। हम क्यों समझते हैं कि जो रिटायर्ड बंदा हो गया, वही इंडिस्पेंसेबल है? ये क्यों इंडिस्पेंसेबल हैं? क्या हमारे पास लोग नहीं नहीं हैं? क्या हमारे सिस्टम ने, हमारे मुल्क ने, हमारी रियासत ने, हमने अपने लोगों पे इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई? हमारा जो फ़ॉरेन सर्विस का जो कैडर है, वो इतना अच्छा है, इतने ज़बरदस्त किस्म के हमारे डिप्लोमेट्स हैं, अगर उनको काम करने का मौका दिया जाए, उनको आज़ादी दी जाए और उनको परफ़ॉर्म करने का मौका दिया जाए, तो दे कैन डू इट वंडरफुली। मुझे आई एम 200% श्योर मैं अपने पाकिस्तान के बहुत सारे डिप्लोमेट्स को जानता हूँ, मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं फ़ॉरेन सर्विस में, जो दोज़ हू आर डूइंग वंडरफुल जॉब और मुख्तलिफ जगहों पे। वो हमें बताते हैं कि उनको क्या मुश्किलात हैं, वो क्या जो है वो किन-किन प्रॉब्लम्स में घिरे रहते हैं। लेकिन द पॉइंट हियर इज़ और उनको पॉइंट में बड़े सारे मसाइल हैं, लेकिन आई डोंट वांट टू गो इंटो दैट, बट माय पॉइंट हियर इज़ कि ये जो पॉइंट है कि जी सरदार मसूद साहब भी पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं, ये बात कोई हज़म शायद मुझे इतनी नहीं होती। क्योंकि सरदार मसूद साहब बहुत अच्छे डिप्लोमेट थे, बहुत अच्छे प्रेज़िडेंट थे, बट ही मस्ट नॉट बी द Pakistan's ambassador to the US because I personally believe somewhere there is a problem here. प्रॉब्लम इन द फॉरेन ऑफिस। ना तो फॉरेन ऑफिस के लोग उसको पसंद करते हैं, ना फॉरेन ऑफिस के लोग उनसे काम करना चाहेंगे। और अगर उनको इस बात पे लगाया जा रहा है जी कि वो कॉल अरेंज करा लेंगे तो दिस इज़ समथिंग वेरी नॉनसेंस। अभी ये जो नए यूएस एम्बेसडर पाकिस्तान आ रहे हैं, इनकी सबसे बड़ी जो चीज़ है, वो इकोनॉमिक टाइज़ इम्प्रूव करने के लिए आ रहे हैं। और अच्छी चीज़ है इकोनॉमिक टाइज़, लेकिन मुझे याद है कि जब इमरान खान साहब और जनरल बाजवा गए थे ट्रंप साहब से मिलने, तो उस वक़्त की पोज़ीशन ये थी कि ट्रंप साहब को बताया गया था कि जी हम आपके साथ एड नहीं ट्रेड चाहते हैं। उसके बाद फिर कितनी ट्रेड बढ़ी किसी को कोई पता नहीं है। और सुनने में तो ये आ रहा है कि जो अमेरिका के जो चार्ज डी अफेयर्स हैं, जो एम्बेसडर्स यहाँ पे होते हैं, वो बड़ी कोशिश करते हैं, भाग-दौड़ करते हैं, कोई इकोनॉमिक टाइज़ इम्प्रूव हो, लेकिन कोई इस तरह की चीज़ है नहीं है। और और अमेरिका क्योंकि चाहता है कि इकोनॉमिक टाइड इम्पोर्टेंट हो, चले वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो डोनाल्ड ब्लोम है, वो और पाकिस्तान जो है, जो मुझे नज़र आ रहा है आइंदा आने वाले दिनों में अल-कायदा हो, दाइश हो, टीटीपी हो, इनके अगेंस्ट तो बहुत ज़्यादा मिलके काम करना चाहेगा। लेकिन अगर ब्लोम ने ये जो प्रेशर डाला पाकिस्तान के ऊपर कि जी जो भारत के रिलेटेड नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उनके ऊपर भी करें, तो ये पाकिस्तान में जो है वो डिक्टेशन बर्दाश्त शायद ना करे, क्योंकि पाकिस्तान ये कहता है कि हमने ऑलरेडी हाफ़िज़ सईद को और बाकियों को जेल में डाला हुआ है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान एफएटीएफ में भी है और जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे ग्रुप हैं, इनमें से बहुत सारे लोग दंदना रहे हैं, इनकी उस तरह मेनस्ट्रीमिंग भी नहीं हुई, इनके लोगों को सज़ाएँ भी नहीं मिली, जिसकी वजह से प्रॉब्लम रहती है। और मेरा ख़्याल है कि अगर हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेज़ोल्यूशन भी हैं, आई थिंक इनके ऊपर 1267 एंड 1357 आई थिंक समथिंग लाइक दैट, या 1373 समथिंग लाइक दैट। सो ये जो रेज़ोल्यूशन है, ये ऑब्वियसली दे आर अ प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान बिकॉज़ ये हमारे ऊपर एक तलवार है जो कंटीन्यूअसली लटक रही है। और ये तलवार कहीं नहीं जा रही, ये तलवार यहीं पे हमारे ऊपर लटकी रहेगी until and unless के we do not work properly on this. So this is what I personally believe and this is what I find out कि पाकिस्तान जो नए यूएस एम्बेसडर आ रहे हैं, there is a lot of opportunity to work together, लेकिन खुदारा इकोनॉमिकली रास्ते तलाश करें। ये ना हो कि वो ही हमें आगे डिमांड्स देते रहें कि तुम फलां दहशतगर्द ग्रुप के खिलाफ लड़ो, हम तो ऑलरेडी लड़ रहे हैं। और अमेरिका और पाकिस्तान का बड़ा कोऑपरेशन भी रहा है इस हवाले से। अगर पिछले 15-18 साल देखा जाए तो पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए बड़ी जानें दी हैं, अमेरिका के साथ बड़ा काम किया है एंड अमेरिकन्स रिकॉग्नाइज़ दिस।
ठीक है, ये इमरान खान साहब ने आके कहा जी कि ये पाकिस्तान की वॉर नहीं थी, सो एंड सो, लेकिन अमेरिकन्स इस चीज़ को बड़ा एप्रिशिएट करते हैं, रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि जी पाकिस्तान ने बड़ा काम किया और विदाउट पाकिस्तान सपोर्ट दे कांट डू इट। और याद होगा अगर कि जैसे ही अफ़गानिस्तान की इवैक्यूएशन हो रही थी, तो यूएस कांग्रेस में ये बातें चलना शुरू हो गई कि हमें जो खित्ते के ममालिक हैं, उन उधर मिलिट्री बेसेस बनानी पड़ेंगी। तो वो फिर उसके ऊपर जब उन्होंने कांग्रेस में बात की, फिर वो पाकिस्तानी मीडिया पे आ गई और फिर इस तरह ये चीज़ें जो हैं वो चलनी शुरू हुई। तो इट सीम्स कि ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है कि वो पाकिस्तान को फ्यूचर में भी समझते हैं एक इम्पोर्टेंट पार्टनर। क्योंकि हालाँकि मेरे जैसा बंदा, आई पर्सनली वांटेड कि पाकिस्तान शुड हैव गिवन दिस यूएस मिलिट्री बेस, पाकिस्तान को मिलिट्री बेस दे देनी चाहिए जॉइंटली काम करने की। ये नहीं कि उनको फ्री हैंड दें, जो मर्ज़ी करते रहें, लेकिन कहीं न कहीं इजाज़त देनी चाहिए थी कोऑपरेशन की, ताकि जहाँ इतने 18 साल काम किया, आइंदा भी काम करें उन ग्रुप्स के खिलाफ जो कि दाइश हो गई, टीटीपी हो गई, क्योंकि हमने टीटीपी को अफ़गानिस्तान में मारना है, क्योंकि द टीटीपी इज़ अ रियल चैलेंज फॉर पाकिस्तान, सो फॉर दैट मैटर वी रियली नीड टू वर्क विद द अमेरिकन्स ऑन दिस। हाँ, ऑब्वियसली हमें वी शुड हैव बीन केयरफुल ऑन कंसर्न्स, हमारी अपनी होमलैंड सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के मैटर्स जो हैं, चाइना, इन चीज़ों के हवाले से भी कंफर्टेबल रहना चाहिए कि इतनी ना यूएस को स्पेस दी जाए कि वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो। बट ऑब्वियसली वर्किंग विद द यूएस इन एलिमिनेटिंग टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन इज़ मच मच इम्पोर्टेंट। सो एक ही चीज़ है कि इकोनॉमी पे फ़ोकस किया जाए, और जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं, उनके खिलाफ मिलके अगर अमेरिका और पाकिस्तान काम करें, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस टू वर्क। बट ये नहीं है कि अमेरिका जो है वो डिक्टेशन देने की कोशिश करे। ऑल व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर पाकिस्तान एंड यूएस इज़ टू वर्क जॉइंटली against all those threats and against whatever the cooperation which is needed, particularly in economy। and Americans यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए बड़ा काम करते हैं। और बहुत सारे लोगों को स्कॉलरशिप देते हैं। हमारी मेजॉरिटी ब्यूरोक्रेसी, सिविल हो, मिलिट्री हो या पॉलिटिशियंस हो, दे आर वेस्टर्न ट्रेन्ड एंड दे आर अमेरिकन ट्रेन्ड है वो, और उन्होंने पढ़ा हुआ है वहाँ से। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूम टू वर्क। और जो आइंदा आने वाले जो जिसे आप कह लें कि गैप्स एंड लूप होल्स हैं, those could be filled in coming days, I'm sure. Thank you very much.